Let's talk about Uttar Pradesh. Two dastardly crimes have made headlines in the last 3 days in Lucknow. A woman was groped by a rowdy group of people on waterlogged street. Now 16 people have been arrested. Entire police chowki has been suspended. In Ayodhya, 2 people have been arrested for alleged gang rape of a 12-year-old girl. The station officer and police outpost in charge have also been suspended. Unfortunately, what has garnered more political attention from the opposition than the crimes themselves are the alleged criminals. In Ayodhya, the accused number 1 is Bhadarsa district president of the Samajwadi Party, Mohit Khan. The local police chowki was running from his premises. He, along with 2 others, are accused of sexually harassing a child, making a video, blackmailing her, and then trying to stall any action. But guess what? Akhilesh Yadav's star MP from constituency, Avdesh Prasad, Raja as he's been called by Akhilesh, has to say about this shocker? Nothing. He said, I will get back. Did Akhilesh outrage over this Anyay? No. Did the Hathras lobby light candles? No. But Yogi Adityanath has stood with the family of the victim. इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे फांसी चाहिए। चाहती हैं क्योंकि घर पे बुलडोजर भी चले। हाँ, बुलडोजर भी चले। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। कहाँ पे क्या हो रहा है पहले? कहाँ पे क्या हो रहा है पहले? प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप ऐसे सवालों से बच क्यों रहे? आप सवालों से बच क्यों रहे? कार्रवाई होगी कि नहीं, मेरा प्लेन छूट जाएगा was the response. Now the very same party that has its lips sealed over Mohit Khan, the party that has not even bothered to take token action like suspending him from party or offering condemnation, is instead focusing on what Yogi Adityanath said, or rather left unsaid in the Lucknow case. While speaking in the assembly, Yogi Adityanath referred to the incident, naming 2 of the alleged accused, Pawan Yadav and Muhammad Arbaz, cryptically adding that a bullet train will be run for the offenders. So what raised the opposition's hackles? That he did not read out the entire list of 16 names, instead choosing to only name a Yadav and a Muslim. The question, viewers, is what is more important, naming or taking action? Because whether it is Lucknow or Ayodhya, there has been zero tolerance, as proves the crackdown. अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उसमें काफी लोग थे, लेकिन 2 ही का नाम, एक मुस्लिम का, एक यादव का बताया, और तो किसी का बताया नहीं। Let's open this up. Guru Prakash, Dr. Ranganathan, Harshvardhan Tripathi ji, Sanjay Jha, Vivek Silas. Vivek ji, अयोध्या में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, वीडियोस वायरल हैं, सब बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये दिक्कत है कि चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लिया। देखिए, सबसे पहले तो हम अयोध्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां बहुत गलत काम हुआ है, और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ जो भी हिंदुस्तान का कड़े से कड़ा कानून है उसका प्रयोग होना चाहिए, और तत्काल उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जो भी बड़ी से बड़ी सजा हो वो देनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड हो। नहीं, किसी ने, आप कह रहे हैं कि जो भी किसी ने किया, किसने किया है, किस पार्टी का, आप बता ही दीजिए। आप नाम नहीं, आपने बताया वो समाज, मैं तो कह रहा हूं किसी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी से अगर वो एसोसिएटेड है तो क्या वो देश के कानून से बाहर थोड़ा ना हो गया? उसने अगर ये घृणित कृत्य किया है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एनी सीएम वुड टेक, I have stood against the criminal. I think योगी जी कब एक्शन लेगी? वो तो जो कोर्ट की जो कार्रवाई वो तो है, लेकिन ना उनको सस्पेंड किया गया है, अवधेश जी तो कुछ बोल भी नहीं। I can assure you, Parnesh, within 24 hours, the man will be suspended from the Samajwadi Party. 24 hours within 24 hours. And अब दूसरी बात करते हैं, जो देखिए योगी जी जब से 2024 वाला चुनाव
समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारी है, तब से योगी जी और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वहां पर 16 लोग थे, लेकिन योगी जी ने सिर्फ 2 लोगों का नाम चुना, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, जबकि उसमें सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन और अभिषेक साहू भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, उनकी पोलराइजेशन और घृणा की पॉलिटिक्स देखिए। उन्होंने सिर्फ 2 नाम लिया, एक पवन यादव का और मोहम्मद अरबाज का, ताकि प्रदेश के अंदर जो दूरियां हैं, जो घृणा है एक दूसरे के बीच में, वो फैलती जाए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन नाम 2 ही लिया, लेकिन एक्शन सब पे लिया है। नहीं, एक्शन आपने लिया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। एक्शन तो लेना ही चाहिए। एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, क्यों गुरु प्रकाश मुख्यमंत्री जी की सिर्फ कुर्सी 2 पे बैठे लोगों का हुए? नाम क्यों लिया, क्या आप कहना चाहते थे? नहीं, मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के विवेक जी की बातों को और कहा कि भाई बौखलाहट है। अगर चुनाव के परिणाम का बौखलाहट से संबंध है तो 14 के लोकसभा में आप हारे थे, 17 के विधानसभा में आप हारे थे, 19 के लोकसभा में आप हारे थे, 22 के विधानसभा में आप हारे थे, तो आपकी बौखलाहट की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। तो चुनाव के परिणाम का, बौखलाहट का और लॉ एंड ऑर्डर का, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अखिलेश जी बहुत शान से बिठाते हैं अयोध्या के सांसद को, बिठाना भी चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। देखिए, यही अब समाजवादी पार्टी की गुंडाई समाजवादी पार्टी के कार्यालय में रखिए, यहां स्टूडियो में मत लेकर के आइए। आपको सब लोग सुनते हैं तो आप लोगों को सुनने का धैर्य का परिचय दीजिए आप। ये बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या के सांसद, जिनको अखिलेश जी अपने बगल में बैठाते हैं, वही सांसद अपने बगल में उस अपराधी को बैठाए हुए थे, मोइन खान। वही अपराधी समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेयरर है। सेम ऑफिस बेयरर समाजवादी पार्टी को लिख पाया गया है और 24 घंटे का समय लगेगा आपको। You have said it on national television that you will take another 24 hours to expel that person from Samajwadi Party. This shows the real mindset of Samajwadi Party. Let me make this very clear. ये असल मानसिकता है आपकी। 24 घंटे ये असल मानसिकता है इसलिए भी सवाल उठेगा आपको अभी लगेगा। FIR मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं सवाल जी मैं एक जवाब दे दूं। एक जवाब दे दूं। बड़े सम्मान से गुरु प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, छोटे भाई हैं। जब BHU की घटना हुई थी और तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो 40 दिन वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। सरकार आपकी थी, चूड़ियां पहन के बैठी थी क्या गुरु प्रकाश जी? कार्रवाई 40 दिन तक, 40 दिन। यू टुक 40 डेज तो चिल्ला लीजिए। यू टुक 40 डेज गुरु प्रकाश। मैं बोलना चाहता हूं। You took 40 days to take an action against him, and you're talking about 24 hours. 1 minute. That is your mentality. Okay, calm down. Dr. Ranganathan is showing something. I'll come to you. I'll come to you, sir. Sanjay Jha, isn't there a lack of outrage? राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, गए नहीं अयोध्या के राजा को सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अवधेश जी को, जिसको कहा था अयोध्या के राजा है वो। इवन allies are not questioning the inaction on Samajwadi Party's part to not take any action against the leader whose name has been who has been named as an accused. प्रणेश, एक नाम तो सब लोग भूल ही गए, बृजभूषण सिंह। प्रधानमंत्री ने तो आज तक एक शब्द भी नहीं कहा बृजभूषण सिंह पे। प्रधानमंत्री तो मणिपुर भी नहीं गए और हमने देखा कितना भयानक वहां पर हादसा हुआ था। तो देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा प्रणेश जी, भारतीय जनता पार्टी का पाखंडी राजनीति का खुलासा मामला नहीं है। But Sanjay Jha, no, 1 minute. No, you slam the BJP. No, but Sanjay Jha, you should set an example. हर बात पे व्हाट अबाउट री, हर बात पे व्हाट अबाउट री। Pranesh, a very valid question. I'm just answering that. So if anybody wants to know the real crime data in Uttar Pradesh, please look at the NCRB data. और सबसे बड़ी बात प्रणेश, हम लोग यहाँ टीवी चैनल पर आकर एक दूसरे पर आरोप और एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे चुका है। एक महीने पहले ही उन्होंने जवाब दिया है कि उनका सोच क्या है इस सरकार के तरफ, राज्य में भी और केंद्र में भी। और जब अभी बाई इलेक्शंस होंगे, so because the Samajwadi Party has more MPs, how are the two related, sir? You are linking the mandate to their inaction against their leader in a heinous crime like this. What mindset is this? I think हर्षवर्धन जी, लोग योगी आदित्यनाथ के स्पीच पे उनको गुस्सा आ रहा, वो कह रहे हैं कि 2 ही लोगों का नाम क्यों लिया, इन्होंने बाकी 14 के नाम पढ़ दिए।
कि क्या कहना चाहते थे योगी जी? प्रणय जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ 16 लोगों के नाम ले लेते तो भी ये यही बात करते। इतने घृणित पाप कर्म पर, उस राक्षस की बात पर इनको अगर दूसरी कोई भी बात इस वक्त याद आ रही है तो इनकी मानसिकता जाहिर हो जाती। विधानसभा में या किसी भी ऐसी जगह पर आमतौर पर कोई भी आप उदाहरण देख लेंगे, एक ही दो नाम लिया जाता है। हो सकता है उससे किसी को ज्यादा चोट लग गई हो, लेकिन उन्हीं योगी जी की सरकार ने, उसी यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब मूल मुद्दा अयोध्या गैंगरेप की तरफ आना चाहिए। अभी मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, साइलेंस जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मुझे लगा कहीं प्रवचन तो नहीं चल रहा है। अरे भाई, आपकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, वो भदरसा नगर पंचायत का वो अध्यक्ष है। बाकायदा अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से उसको बनाया गया है। वो आपका बहुत कमिटेड कैडर है। वो अवधेश प्रसाद जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। कांधे पे हाथ रख के फोटो आ रही। आप कह सकते हैं फोटो नेता की किसी के साथ होती है, लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अवधेश प्रसाद का एक बयान तो आज मुझे एकदम हतप्रभ कर गया। उन्होंने कहा, मुझे किसी अयोध्या के संत ने कहा है कि बोलना नहीं है, और वो सारी बातें 3-3.5 मिनट बोलने के बाद वो बोले। इसका सीधा सा मतलब हुआ उनको सब कुछ पता है, उनको सारी जानकारी है कि कौन सा कुकर्मी उनका साथी है जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा। आज तो किसी को उसका बचाव नहीं करना चाहिए था। आज ब्रजभूषण को, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या बातें कर रहे हैं, आज किसी और को उसको याद करने का दिन नहीं था। आज 12 साल की जो बच्ची, जो निषाद परिवार की बच्ची है, जिसके पिता भी नहीं है, जिसकी मां और बहन वो मिलकर काम करके घर चलाते हैं, उसके साथ मोहित खान पापी ने अपने नौकर राजू खान के साथ मिलकर गैंगरेप किया और उस वीडियो को सर्कुलेट किया। वो पापी अवधेश प्रसाद का साथी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन, डिम्पल जी तो महिला है, डिम्पल जी तो महिला, उन्होंने भी नहीं बोला। And we know their names, the people in it. They are missing in action. No, as I said, Pranesh, there are two rules for different people, and media supports one set of rules. So obviously what Harshvardhan ji has said is absolutely correct. The outrage should be on what is had happened in Ayodhya and this Mr. Mohit Khan. And for my dear friend Vivek ji to say कि हम अगले 24 घंटे में करेंगे। 24 घंटे 48 घंटे बीत चुके हैं विवेक जी, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं आपने जो कमेंट किया मैं उस पर आना चाहता हूं। सो प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। मैं विवेक जी की बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, एज में छोटे लेकिन दिखते बड़े, वो अलग बात है। एक तो मैं इनके इस पे ऑब्जेक्ट करता हूं कि इन्होंने अपनी डिबेट में कहा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से आपने चूड़ियां पहन रखी थी। दैट इज अ मिसोजिनिस्ट कमेंट। जो चूड़ियां पहनता है वो किसी भी उसमें वीक नहीं है, तो ये आगे से आप ना बोलें कृपया। नंबर 2, जो इन्होंने अयोध्या जो लखनऊ की बात करी, मैं इस पे आना चाहता हूं कि अगर मैं होता योगी जी की जगह, मैं 16 के नाम लेता, ये जितने नाम थे लेता। लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए योगी जी ने क्यों लिया मुस्लिम और यादव का नाम, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला, इनके लिए पहले सद्भावना ट्रेन चलती थी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी जैसे ही पावर में आई, ये देख रहे हैं आप, ये सद्भावना ट्रेन, आजम खान के अगेंस्ट जितने केसेस थे वो अखिलेश यादव ने वापस ले लिए। ये सद्भावना ट्रेन को हाईलाइट कर रहे थे योगी जी। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए, वो जरूरी है। पहले जब अखिलेश गवर्नमेंट की सरकार होती थी तो मुस्लिम्स और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस ने खुद क्या रखा है ये, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो प्लीज आप आधी कटी हुई बातें योगी जी की ना कहें। जी विवेक जी, देखिए आप कह रहे थे कि कौन बचा रहा है, एक्शन नहीं लिया तो बचाना ही तो है, और 24 घंटे बोल रहे हैं आप। आनंद रंगनाथन भाई ने अभी आजम खान की बात की कि उनका केस वापस लिया गया, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस खुद वापस लिए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो इससे ज्यादा टिप्पणी अब करने की जरूरत नहीं है। और आपने जब डिबेट स्टार्ट की थी वो लखनऊ से स्टार्ट की थी, मैं था जो डिबेट को सीधे अयोध्या लेके गया था। नहीं, वो आप लेके गए थे विवेक जी, आप लेके गए थे, लेकिन आपके पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, अवधेश जी, और आपकी जो अलायंस है इंडिया अलायंस, वो क्यों इस पे ना कोई आउटरेज है ना कॉन्डेमनेशन है, और एक्शन क्या लिया आपने? नहीं, क्या समय लगता है? एक व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, चिट्ठी लिखिए, रिलीज कर दीजिए कि अब आप बर्खास्त किए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। टुडे अखिलेश जी हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ फ्रॉम दिल्ली, एंड आई थिंक
अरे Rahul Gandhi can tweet आज from शाम को या कल तक यू विल गेट द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। हर्षवर्धन जी कल शाम तक का समय दे दीजिए अखिलेश यादव जी को। अरे 40 दिन हम नहीं लेंगे ना। मध्य प्रदेश में हम प्रचार नहीं कराएंगे बलात्कारियों से, हम सस्पेंड करेंगे। जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन जी। प्रणेश जी, मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है। विवेक जी को क्या लगता है कि ऐसे बोलने से जो लोग उनको देख रहे हैं वो ठीक समझेंगे क्या? इतने संवेदनशील मुद्दे पर इनके बात करने का तरीका देखिए। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अरे कमाल है भाई। उस आदमी का ये रसूख, ये दबदबा था कि उसके घर में पुलिस चौकी समाजवादी पार्टी की सरकार में आई। ये हुआ उसके बाद अभी 3 दिन पहले उसकी चौकी हटाई गई। जो बार बार कहा जाता है तो 7 साल से आप क्या कर रहे थे? लोग हैं। 3 दिन पहले अगर चौकी हटाई गई नहीं होता है तो ये सरकार क्या कर रही थी? देखिए 30 घंटे लग गए FIR फाइल होने में, 30 घंटे लग गए और अब आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे और लगेंगे हमको एक्शन लेने में। अब आप सोचिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप। इससे आगे की बात 2 लाइन बोलने दीजिए मुझे। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं अखिलेश जी अभी लखनऊ गए हैं, आज निकले। कमाल कर दिया भाई। इतना कुकर्म करने वाले को पार्टी से निकालने के लिए 40 दिन वालों से भी बात कर लीजिए। हर्षवर्धन जी, तो निलंबित कर सकते थे। जिन्होंने 40 दिन लिए थे और बलात्कारियों को निलंबित कर सकते थे, सस्पेंड करने में। Let's hope that action happens sooner than later. We are out of time, gentlemen. We are out of time, gentlemen. Thank you for joining us on India Front. Taking a break. Navita Kumar on the news are coming up.